because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे टिल दी डेट ऑफ काउंटिंग. दैट्स द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर द पोस्टल बैलेट. इट हैज़ बीन चेंज्ड नाउ. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं. बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल अपॉर्चुनिटी फॉर सम टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स और इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स. देयरफॉर ऑल ऑफ देम नाउ onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections, because money power is one thing which we want to restrict. We now will come to the schedule which you are awaiting state by state, and now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November and for phase 2 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up, just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं. देखिए, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है. 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे. 3 दिसंबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे. छत्तीसगढ़ की सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, 2 फेज में यहां पर इलेक्शन होने हैं. 7 नवंबर को, 17 नवंबर को. मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को चुनाव होंगे और रिजल्ट आ जाएंगे 3 दिसंबर को. तो देखिए, जिसका इंतजार था, चुनावी शंखनाद हो चुका है. चुनावी यहां पर बिल्कुल फूंक दिया गया है. 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा और 3 दिसंबर ये वो तारीख होगी जब रिजल्ट सबके सामने होंगे. एक एक करके राज्यवार हम जानकारी देते हैं कि किन राज्य में कहां पर कब चुनाव होने और कब रिजल्ट होगा. बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जैसा कि आकांक्षा बता रही है. और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार ने बताया, आकांक्षा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है छत्तीसगढ़ में चुनाव को संपन्न कराना. 2 फेज में यहाँ पर चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर. 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे और 13 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 20 तारीख तक चलेगी. बिल्कुल.
छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा और इसके साथ आपको बता दें 17 नवंबर को मतदान होगा मध्य प्रदेश में और 5 दिसंबर तक सब सारी प्रक्रिया निपटा ली जाएंगी। 3 दिसंबर को तमाम राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव, जो दूसरे चरण का मतदान होगा वो 17 नवंबर को होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, चुनावी रणभेरी बज चुकी है और देखिए वोटिंग 7 नवंबर को मिजोरम में होगी, छत्तीसगढ़ में पहले फेज की होगी और इसके साथ जो गणना है, मतगणना है 3 दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार 5 राज्यों में। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को पहले एक फेज में चुनाव होने हैं। तो जब फर्स्ट फेज में बाकी राज्यों में 3 राज्यों में जहां पर चुनाव वोट डाले जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सिंगल फेज, एक फेज में यहां पर चुनाव संपन्न होंगे और 3 तारीख को परिणाम आएंगे। यानी कि आकांक्षा, जो फर्स्ट फेज जो है वो 3 राज्यों में, चलिए 17 नवंबर को हम अपडेट करें। 17 नवंबर को फर्स्ट फेज के मध्य प्रदेश में चुनाव है, यानी कि 7 तारीख को अगर फर्स्ट फेज में छत्तीसगढ़ में होंगे, 17 तारीख को जब सेकंड फेज में छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी उस समय मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम खास तौर पर क्योंकि लगातार फोकस कर रहे हैं आकांक्षा, इस वजह से हम देखें तो 17 तारीख को सिंगल फेज में चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में और 3 तारीख को इसके परिणाम आ जाएंगे। बिल्कुल, तो 3 दिसंबर ये वो तारीख होगी जब राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा, तमाम जो किस्मत का पिटारा है वो खुलेगा तमाम कैंडिडेट्स का। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है और ठीक 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो इलेक्शन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया, स्पष्ट हो गया है। राजीव कुमार ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को एक फेज में चुनाव होगा, वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होंगे 7 नवंबर और 17 नवंबर को। इसके अलावा मिजोरम में भी चुनाव होंगे 7 नवंबर और 3 दिसंबर को ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के आगामी विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा करते हुए राजीव कुमार ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी के कुल मतदाताओं की संख्या 17 लाख से ज्यादा है। देखिए 7 और 17 तारीख ये नवंबर 2 चरणों में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को रिजल्ट हमारे सामने होंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 17 नवंबर को वहां पर मतदान होगा और 3 दिसंबर ये वो तारीख है जिस दिन तय होगा कि अब की बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में किन की सरकार। और जानकारी जैसे कि दी गई कि मिजोरम में 17 दिसंबर 2023 यानी कि इस साल के आखिर में मिजोरम सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में 16 जनवरी 2024 और उससे पहले ही यहां पर चुनाव निपटा दिए जाएंगे। 3 दिसंबर को रिजल्ट हमारे सामने होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, जैसा कि राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त जानकारी दे रहे थे कि संवेदनशील इलाकों में शुमार है छत्तीसगढ़, इसलिए यहां पर 2 चरणों में मतदान होगा। और राहुल कयास भी यही लगाए जा रहे थे, पहले से ये माना जा रहा था और हमने भी ये जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में इस बार फिर पिछले बार की तरह 2 चरणों में चुनाव होंगे और तारीख भी अब सामने है। राहुल, उसकी मुख्य वजह यही है आकांक्षा की चुनौतियां होती हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित राज्य भी माना जाता है। ऐसे में 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराना पड़ता है क्योंकि फोर्सेस की जरूरत होती है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है। शायद यही वजह है क्योंकि हर बार 2 चरणों में चुनाव होते हैं। इस बार भी यही तय हुआ। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे तो वहीं 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर सिंगल फेज, एक ही फेज में चुनाव संपन्न होंगे। और छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां हमने देखा आकांक्षा, कांग्रेस और भाजपा ने एडी चोटी का जोर लगा रखा है और क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं यहाँ पर जिस पर सरकार ने काम किया है। कांग्रेस सरकार ने गारंटियों को जनता के सामने रखा है, भाजपा केंद्र की योजनाओं को लेकर चल रही है। तो ऐसे में ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना है। एक ही सूची जो है भाजपा की आई है आकांक्षा। ऐसे में ये देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे अब इस दौरान राइज होते हैं। बिल्कुल, और देखिए चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है और अब चुनावी बिसात बिछने लगेगी। मोहरे अब यहां पर पूरी तरह से सज जाएंगे और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। देखना होगा कि शहमाद की इस बाजी को अपने नाम कौन करता है, किसकी सरकार बनती है। तो छत्तीसगढ़ में 7 और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा और रिजल्ट 3 दिसंबर को हमारे सामने होंगे कि अब की बार किसकी सरकार। और सरकार को लेकर के आपको बता दें
आप भी IBC 24 पर मेगा कवरेज देख रहे हैं। मेगा कवरेज में हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक ही फेज में चुनाव होना है 17 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 7 नवंबर, दूसरा चरण 17 नवंबर और इसी दिन मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में 230 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे और 3 दिसंबर को हमारे सामने फैसला होगा। जनता तय कर लेगी कि इस बार वो सरकार किसकी बना रही है। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है, जैसा कि हमने आपको जानकारी ही दी थी। सबसे पहले IBC 24 ने आपको बताया था और यह भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि 3 दिसंबर के पहले ही शायद नतीजे आ जाएंगे। आज सुबह जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें जानकारी मिली, हमने जब पूरी जानकारी जुटाई तो ये स्पष्ट हो गया था कि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। और टैली के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे उस दौरान तब किसकी पार्टी को कितने सीट्स मिले थे और अब देखिए 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ में 7 और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। गढ़ में अब दंगल होगा और मध्य प्रदेश का महासमर देखेंगे हम। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। लीजिए साहब, तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शक जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तारीखें आ चुकी हैं चुनाव की। और अब छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव, 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 फेज में चुनाव होगा और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में केवल 1 चरण में 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब पहले चरण में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, इसमें 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ का पहला फेज होगा। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे। आप ये देखें, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 7 नवंबर को और दूसरा चरण होगा 17 नवंबर को। इसी तरह से मध्य प्रदेश में केवल 1 फेज में वोटिंग होगी, वो होगी 17 नवंबर को और सभी राज्यों के 5 राज्यों के नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर वो बड़ी तारीख होगी जब जनादेश आपका खुलकर सामने आएगा देश के। मध्य प्रदेश का महासमर हो या गढ़ की चुनौती, कौन सा दल सरकार बनाएगा ये स्पष्ट होगा 3 दिसंबर को जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। और अब की बार छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में और मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव है और पहली जो तारीख होगी चुनाव की छत्तीसगढ़ की फर्स्ट फेज की, वो 7 नवंबर है। इस लिहाज से 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है पहले चरण की वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, और नॉमिनेशन की तारीखें भी आ चुकी हैं पुनीत जी। 13 से 22 नवंबर तक नॉमिनेशन करना होगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, नामांकन आपको दर्ज करना होगा 13 से 22 नवंबर के बीच। मिजोरम की अगर बात की जाए तो 7 नवंबर को यहां भी मतदान होना है और 3 दिसंबर को रिजल्ट यहां भी आ जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होने हैं। ये 5 राज्यों की एक साथ तारीखें आप देख लें अच्छी तरीके से। इन्हीं तारीखों पर वोट पड़ने हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये तारीखों के ऐलान हो गए हैं। तो देखिए 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। 23 नवंबर को राजस्थान में, 17 नवंबर को मिजोरम में और 30 नवंबर को आप मतदान कर पाएंगे अगर आप तेलंगाना वासी हैं। तो मध्य प्रदेश में होंगे 17 नवंबर को 1 चरण होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को वोट पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर। ये तारीखों के ऐलान अभी किए हैं चुनाव आयुक्त ने घोषित। मध्य प्रदेश में 1 फेज में, केवल 17 नवंबर को 1 फेज में चुनाव होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को 1 फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होंगे, एक है 7 नवंबर और दूसरा है 17 नवंबर। सभी राज्यों की मतगणना एक साथ 3 दिसंबर को होगी और 3 दिसंबर को एक साथ सभी के नतीजे घोषित होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा फोकस अब की बार फ्रेश वोटर्स पर है। 60.2 लाख 18 से 19 साल के बीच के फ्रेश वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं। 80 साल से अधिक आयु वर्ग के जितने भी
मतदाता हैं उनके लिए अब की बार एक नई फैसिलिटी घर से मतदान करने को लेकर के है। निर्वाचन आयोग का यह मानना है कि उन्होंने पूरा इंतजाम किया है कि वोटिंग प्रतिशत पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़े और आप सबकी भी, मतदाताओं की भी मदद मांगी है, सुझाव मांगे हैं और अगर आपको सुधार कार्य कराना है किसी भी किस्म का तो उसका भी वक्त अभी दिया है। ठीक है, और नामांकन की प्रक्रिया के बारे में एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी, जो कि 21 अक्टूबर तक रहेगी। और आपको बता दें नॉमिनेशन का जो आखिरी दिन है 20 अक्टूबर तक आप नॉमिनेशन कर पाएंगे, स्क्रूटनी होगी 21 अक्टूबर को। और सीधे चलते हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। एक सूचना और चुनाव आयोग ने दी है, 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु समय और दिया गया है। यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन का समय दिया है। एक नई चीज जो जारी की है, आपराधिक छवि के लोगों को 3 बार विज्ञापन देना होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग बेल में हैं, कई लोग और स्थिति है, तो उनको 1 बार नहीं 3 बार देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और गजट नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के फेज़ 1 के लिए होने वाला है 13 अक्टूबर को होने वाला है, और दूसरे फेज़ के लिए जो गजट नोटिफिकेशन होगा 21 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को होने वाला है। और कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया जो पूरा होके 3 दिसंबर को 5 राज्यों के अलग अलग समय पे मतदान हो रहे हैं। एक फेज़ 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर, और उसके बाद अलग अलग फेज़ में मिजोरम और अन्य स्थानों में चुनाव होंगे। मगर मतगणना एक साथ होगी 3 दिसंबर को। मैं समझता हूं कि आज आचार संहिता लागू हो गई है और सभी मतदाता बंधुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मतदान में हिस्सा लें और प्रजातंत्र के इस पर्व को निश्चित रूप से सफल बनाएं। डॉक्टर साहब, सवाल एक है, तैयार है चुनाव है और बीजेपी क्या मानकर चल रही है, नतीजे किस तरफ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को 2 तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। पहले चरण में हमने न केवल दंतेवाड़ा से बल्कि जसपुर से, और ये देखें आप 5 राज्यों के चुनावी प्लान को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 17 नवंबर को एक चरण में मध्य प्रदेश में वोट पड़ने वाले हैं। 7 और 17 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में वोटिंग होने वाली है। राजस्थान में एक चरण में 23 नवंबर को वोट पड़ेंगे। 7 नवंबर को मिजोरम में वोट पड़ने हैं और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होनी। ये अलग अलग चुनावी तारीखें हैं। पूरा चुनावी कार्यक्रम आपके सामने है। बड़ी बात ये, मध्य प्रदेश में एक फेज में और छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होने, और दूसरे फेज के बाद 3 तारीख को एक साथ इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित किए जाने।
और पुनीत जी, आपको भी याद होगा कि 5 राज्यों में पिछली बार इन्हीं 5 राज्यों में 11 दिसंबर को रिजल्ट आए थे, लेकिन इस बार ठीक उसके एक हफ्ते पहले यानी कि 3 दिसंबर को ही पांचों ही विधानसभा चुनाव के राज्यों के रिजल्ट हमारे सामने होंगे। यानी कि हमें लग रहा था कि इस बार काफी देरी होगी, लेकिन प्रक्रिया और उसके पहले ही पूरी हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में आप देखें, दीपावली के पहले एक चरण और दीपावली के बाद दूसरा चरण, ये मतदान का होगा और मतगणना 3 तारीख को होनी है। यानी इंतजार रहेगा दलों को 3 तारीख का, 3 दिसंबर का, जब देश को भी पता चलेगा कि 23 में किसने बाजी मारी है। एक और बड़ी बात जो आज निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि 1/6 यानी 6वां हिस्सा पूरे देश की मतदाता आबादी का अब की बार वोट करेगा। 16.14 करोड़ कुल मतदाता हैं, जिनमें 8.2 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला मतदाता हैं। फ्रेश वोटर्स की संख्या 60.2 लाख है और इन्हीं 18-19 साल के वोटर्स पर दलों की और निर्वाचन आयोग की भी नजर है। बिल्कुल। और अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी जो पहली बार के मतदाता हैं, जो 18+ हो चुके हैं और अब उन्हें मतदान अपने मताधिकार का उपयोग करना है, उनकी भी संख्या बढ़ी। और इसलिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि इस बार यंगस्टर्स को साधने के लिए बीजेपी भी उतना ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और उतना ही कांग्रेस भी। और लगातार रिएक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। नवीन सिंह सहयोगी हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम कर सकते हैं। नवीन, बताएं, इस वक्त मध्य प्रदेश में सिंगल फेज में चुनाव ने रिएक्शंस मिले आपको कुछ? देखिए, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था आचार संहिता का और आचार संहिता लग चुकी है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि आचार संहिता लगे, उसके बाद अपने वचन पत्र के तमाम एजेंडे आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि आचार संहिता लगे, उसके बाद अपने वचन पत्र के तमाम एजेंडे वो जारी करे। अब्बास हफीज हैं, क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी पहले से तैयार है। हम तो पिछले 3.5 साल से, जब से सरकार गलत तरीके से गिराई गई है, तब से हम मैदान के अंदर मौजूद हैं। अब जब आचार संहिता लग चुकी है तो हमारी उम्मीद है कि जिस तरह से इसका पालन होना चाहिए वो कराया जाएगा। कोई अधिकारी कर्मचारी भेदभाव के साथ काम नहीं करेगा और ये हमारी तैयारी रहेगी हर जगह के ऊपर कि हमारे कार्यकर्ता इस पर पूरी नज़र बना के रखें कि कहीं पर भी कोई उल्लंघन ना हो रहा हो। अगर कहीं उल्लंघन होता है और फिर से दमो चुनाव की तरह कोई धनबल का इस्तेमाल होता है तो उसकी पर कठोर कार्रवाई करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो वचन हैं उनको बहुत जल्दी जनता के बीच में लेकर आएंगे। बहुत जल्दी आपको सूची भी सामने देखेगी कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल, कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी इनके जो वचन पत्र के जो बड़े हिस्से हैं उसको कॉपी कर रही है। लाडली बहना योजना भी उसी में था। आचार संहिता का बड़ा लंबे अरसे से इंतजार था, आपको क्या उम्मीद है और क्या तैयारी है? देखिए, लोकतंत्र के युद्ध का आज बिगुल बच चुका है। जो लोकतंत्र का जो युद्ध होता है जिसमें जनता अपनी मर्जी से अपना मताधिकार का प्रयोग कर कर अपना प्रत्याशी, अपना नेता चुनती है, उसका आज बिगुल बच चुका है। और हम यही कहेंगे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 साल में निरंतर जनता के हितों की बात की, जनहित की बात की, महंगाई बेरोजगारी की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, आदिवासी सुरक्षा की बात की, दलितों की बात की है। तो आज देखें, आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जो 17 तारीख जो मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए तारीख आई है, मैं दावा करता हूं कि इस तारीख को जनता कांग्रेस का बटन दबाकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। क्या तैयारियां? तारीख आ गई है, 17 तारीख को वोटिंग होगी। कांग्रेस की क्या तैयारी है? राहुल गांधी दावा कर रहे हैं 150 सीटों के साथ सत्ता में आ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का ये उत्सव मनने जा रहा है। आज इसकी औपचारिक घोषणा हो गई। कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही थी और आपने देखा था कि चूंकि जनता के मन में कांग्रेस है, जनता ने 15 महीने का कांग्रेस का शासनकाल देखा है। जनता को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात पसंद आई थी, जो बिजली के बिल उसके घर पहुंचे थे। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। जनता आज भी उम्मीद कर रही है कि कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश सहित सारे राज्यों में बने, जिससे उसे अच्छे दिन आज आए। बिल्कुल, कांग्रेस को उम्मीद है कि सत्ता में वापसी होगी। राहुल गांधी 150 सीटों के साथ कमबैक करने का दावा कर रहे हैं। और सबसे खास बात पुनीत, कि कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही थी कि इनके जो वचन पत्र के एजेंडे हैं वो बीजेपी कॉपी कर रही थी और आचार संहिता के बाद तमाम घोषणाएं, तमाम जो वादे हैं उसको कमलनाथ जी वचन पत्र के जरिए जारी करेंगे। तो फिलहाल आचार संहिता लग गई है। अब ये माना जा रहा है कि वचन पत्र के लिए टेबल एक्सरसाइज और तेज होगी और जल्दी ही कांग्रेस का वचन पत्र आएगा। बिल्कुल, आपने जो रिएक्शन बताए हैं इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद की जा रही थी
भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सरकार और ज्यादा सीटों से लौटेगी। कांग्रेस कहती है परिवर्तन का मन जनता ने बना लिया है, सरकार भांप चुकी है, अब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के एक साथ नतीजे आएंगे। 2024 में देश के चुनाव होने हैं और उनसे चंद दिनों महीनों पहले जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के नतीजे आएंगे, उनसे वातावरण का, देश के मिजाज का एक बड़े हिस्से का पता लगेगा। इसीलिए इसको आप सेमीफाइनल के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां 2-2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 7 नवंबर को पहला फेज होगा और 17 नवंबर को दूसरा फेज होगा। यानी पहले चरण की वोटिंग में अब 1 महीना भी नहीं बचा है और 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। क्या यहां पर मुख्यमंत्री सरकार बचाएंगे, क्या यहां कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी या भारतीय जनता पार्टी का बदलबो का नारा पूरा होगा? उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बच पाएगी, बीजेपी रिपीट होगी, क्या एक बार फिर इतिहास बनाएगी या कांग्रेस पार्टी का परिवर्तन का नारा कामयाब होगा? इन सारे सवालों के जवाब 3 तारीख को आपको मिलने हैं। और जैसा भी आकांक्षा भी आपको याद दिला रही थी, पिछली बार 11 दिसंबर को नतीजे आए थे, अब की बार 3 दिसंबर को, 1 सप्ताह पहले देश को पता चल जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार। राजस्थान में भी बड़ी कड़ी टक्कर है, क्या गहलोत सरकार रिपीट होगी या अब की बार जो इतिहास बनेगा या पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, यह भी देखना होगा। हर बार वहां अल्टरनेशन में सरकारें बदलती नहीं। चलिए, तो एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है और सुबह से ही IBC 24 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। आज का दिन बेहद बड़ा, क्योंकि और देखिए वीडी शर्मा मैं जनता से आह्वान करता हूं कि विकास और गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुत से बेअसरी दिलाए। थोड़ा कम वक्त मिल रहा है चुनाव, कोई कम वक्त नहीं है चुनाव में। जो ये कम वक्त उनके लिए जो ऐसे लोग रहते हैं जो परीक्षा के समय तैयारी करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगी होती है और जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो जिसने काम किया है उसे जनता समर्थन देती है। तो हम कोई 24 घंटे की तैयारी वाले लोग थोड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जनता की सेवा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने के अभियान में लगी है। यही हमारी ताकत है, विकास और गरीब कल्याण। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ऐतिहासिक दावा कितना दावा? अरे दावा ऐतिहासिक बहुमत से आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। तो आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। और चुनाव तारीखों के बाद पहली प्रतिक्रिया जो है वीडी शर्मा जी ने IBC 24 के दर्शकों के लिए दी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। देखिए पुनीत जी, इससे पहले जब कांग्रेस की प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे तो उनका भी यही दावा था कि इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और कुछ ऐसा ही दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली उन्होंने IBC 24 से बात की और दावा यही कि इस बार 175 पार। बड़ा दिलचस्प ये दावों का सिलसिला होगा जो आने वाले वक्त में बदलता है या और बुलंद आवाज में किया जाता है, देखना होगा। हालांकि परिस्थितियां बदली हैं पखवाड़े दर पखवाड़े। हर पखवाड़े चुनावी तैयारियों और सभाओं ने माहौल में कितना परिवर्तन वास्तविकता में लेकर आए हैं, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। बहरहाल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। तैयार थी और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पहले सूची जारी करके चुनाव का जो माहौल वो बना लिया था और अब भारतीय जनता पार्टी पूरे उसमें जोर शोर से उतर चुकी है। साथ ही साथ ये आप कितना है भारतीय चुनाव की तारीखों का ऐलान चुका है, कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सूची कब तक आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव के मोर्चा में जाने के लिए कार्यकर्ता तैयार है। मतदाता भी उत्सुक है। इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए जितना जल्दी वक्त मिले उतना ही समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि मतदाता और कार्यकर्ता तैयार हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ये बताइए, आप लोगों ने 21 प्रत्याशियों की सूची तो पहले जारी कर ली थी, बाजी मार लिया था, अब दूसरी सूची आने में कहाँ मामला अटक गया और विरोध भी हो रहा है संभावित सूची को लेकर, उसको किस तरह से निपटेंगे आप? कहीं लोगों के मन में टिकट के प्रति ज़्यादा संख्या में प्रत्याशी होने की वजह से लोगों के मन में तकलीफ दिखती है। उनको साथ बैठकर मैं स्वयं बैठ रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठ रहे हैं
और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, इसका निराकरण करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पर्याप्त समय मिलेगा तैयारी का आप लोगों को? बिल्कुल पर्याप्त समय, 7 तारीख और 17 तारीख पर्याप्त समय है, और इस समय में भारतीय जनता पार्टी 2 महीने से तैयारी कर रही है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे साफ हैं। छत्तीसगढ़ में मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे हैं जन घोषणा पत्र में वादे जो अधूरे रह गए हैं वो, दूसरा विकास पूरी तरह से ठप हो गया है, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में किए गए विकास काम जो लोग आज याद कर रहे हैं। कुछ फेस होगा क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का? सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आपने सुना कि ये थे रमन सिंह जी, और इनका कहना है कि जो विरोध चल रहा है टिकट को लेकर वो